all of you, welcome to Technotexters channel, or you can say a platform where the technology things are shared. It is completely based on Python language. So, okay, about the presenter, about myself. So I am a ENTC graduate engineer from Pune University. I'm having almost 6+ years of experience now. So it was written by 5+, but I have almost 6+ years of experience now in IT field, information technology company. So I have performed various roles, like from data analyst. I have started my journey from data analyst. Then I got my second job as a developer. Then I got the other position like a software engineer. Then senior data engineer I have performed at one of the MNCs. Currently, I am the full stack developer in a MNC. So I am currently working in MNC at Pune location. Okay, so as I have already told you, I have worked in multiple companies, which includes startups as well as MNCs. Is like 4 or 5 companies I have worked in. So during this experience, I have gained experience from multiple domains. So there are some of the domain names which I have worked. So I have good understanding and knowledge of these domains as well. So and I have performed the development tasks and engineering tasks or business logic development in these domains. So I have worked in data engineering as a data engineer. So I have worked in data science domain as well. So I know data visualization part and all. So web development, yes. So I know web development as well, and data analytics. So data analytics is the field or domain which is particularly regarding the data, right? I have also worked on banking domain as well. So I have worked for foreign bank, multinational banks, and then hospitality industry. So I have worked in one of the organizations who serves for hotels. Then logistics. So logistics is another domain which is supply chain management and all. So in these all of the domains I have worked and gained the experience. So that is a short about myself. So let's move ahead. Okay. So this is the demo session regarding Python programming language only. So most of you know what is Python language or what is programming language, right? So I'm not going to explain that here what is programming language and all. I will directly start with the why Python language, because I know you have joined this session because you know what is Python language, right? So why Python language apart from other languages, right? So there are multiple languages present in the IT industry or in market, right? Because it is free and open source. First advantage is why you should pick Python language over other languages, because it is free and open source. That means you don't need any money to implement or install the packages or install the language installation of the tools for the language. Second point is it is having large community and it has a great support as it is open source from the globe. Group of the developers are supporting to this language day by day. It has large number of packages as well as compared to other languages. So, and each and every version of the Python is evolving. It is having multiple or new packages and updates each and every version of the Python. Currently the Python version is 3.10, right? If you have explored regarding some of the some information about Python language, then you may come to know that current latest version of the Python language is 3.10. So we are going to discuss all about Python 3 version, because Python 2 version is end of life, so it is not alive right now. Okay, so third point, why should you pick Python language or other languages, is simple and easy to learn. Its syntax is more simpler than other languages. So ये बहुत simple है. So
सिंपल टू लर्न है और इजी टू इम्प्लीमेंट भी है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत इजी है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, एंड वो कैसे है वी आर गोइंग टू सी इट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। Highly productive as compared to other programming languages like C++ and Java. So Java और C++ भी productive languages है. That doesn't mean that those are not productive languages. But here what productive means, जो syntax है और structure है Python language का वो बहुत simple है as compared to C++, Java. That's why anyone can learn it quickly and be more productive as compared to other languages. That's why it has more productivity over other languages as well. Then more concise and expressive language, right? So it requires less time, efforts, and provided less number of lines of code to perform same operations. और एक कैसे ये number of lines of codes क्यों less required है? Because it has very simpler syntax as compared to other languages. We are actually going to see and compare the other languages with Python language, and we are going to see how the syntax is varying as compared to other languages. It is fastest growing programming language and can develop any application. So अभी आप अगर Google पे डालोगे कि what are the top 5 programming languages, I'm sure that top 2 or top 3 में Python language there should be. It should be at top first position for some of the domains, right? For machine learning, for data science, for development, it may be at top first position, right? These are some reasons why should you pick Python language or other languages. Okay, so let's move towards next slide. So अभी इस slide पे हम क्या देखने वाले हैं कि we are going to compare one of the example of code example with C, Java and Python, right? So आपको ये पता चलेगा कि C का सिंटैक्स कैसा है अगर एक कोड है, एक सिनेरियो है वो इम्प्लीमेंट करना है, बेसिक कोड है. आई विल जस्ट शो यू कि अगर ये कोड C में इम्प्लीमेंट किया तो कितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स ये लेगा. लाइक सिमिलरली how much number of lines of code it will take in Java language as well as in Python. First start with C language. So C language में एक कोड इम्प्लीमेंट करना है. कोड जो है कि वो it is a simple code which will just add 2 numbers and returns the sum of the number. So this is the syntax of C language. So C program to add 2 numbers using a function. So it is implemented using C language. So this is the example of C language code. So it has number of lines, right? So it has some of the boilerplate code and all. Okay. So some of you know that C language contains this kind of boilerplate code. If you don't know C and Java, then it is also okay. You can directly learn Python. That is the advantage of Python. ऐसा नहीं है कि तुम्हें जावा परफेक्ट करना है तभी आपको पाइथन आएगा. These are misconceptions. Even I don't know Java because I have started from Python itself and gained some of the expertise in Python. Because Java and Python, those are similar languages. Those are two separate ways, right? Let's implement the same example using Java language. So Java language में कैसा है syntax? It is like similar. We are implementing just addition of 2 numbers logic. So ये अभी C और Java ने पूरा space खा लिया है. तो अभी Python कहाँ पे show करना है, right? So don't worry, we are going to show Python here itself because it is having very much less number of lines of codes and it is having very simpler syntax as compared to C and Java. तो Python का कोड कहाँ पे आएगा? नीचे. So ये देखो यहाँ पे Python का कोड है. So only 4 lines में आप वो implement कर सकते हो. You can implement in 1 line as well, single line as well. So that much simpler. अगर आपको यहाँ पे आप नए हो या you are new to programming or if you read this, you don't get anything. If you read the C language code, you don't get anything. If you read the Java language, then I'm sure you don't get anything because ये public class ये क्या क्या है I don't know because I also don't know the Java language.
बिकॉज ये पूरा मैंने स्क्रीनशॉट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगा दिया है. सो अगर आप पाइथन के कोड को रीड करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ सकता है यहाँ पे. So what we are doing, we are entering, taking the first number from user, second number from user, and यहाँ पे simply we are adding those numbers, num1 plus num2, और directly हम वो result print कर रहे हैं यहाँ पे. That's it. So इतना simple syntax है Python का. So that is just I want to show that what are the core syntax or how the syntax is more simpler than C and Java. Okay. So let's move to other slides. So what is the top programming language 2021? So IEEE ने एक list of top programming languages publish की थी at 24 August 2021. IEEE ने declare किया है कि Python dominates as the de facto platform for the newer technologies. That means Python has dominated all the other languages. तो ये अभी Python ये जो language है ये de facto प्लेटफॉर्म यानी डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म हो सकती है आगे जाके फ्यूचर में. दैट्स व्हाई जो भी लैंग्वेजेस है, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, देयर आर लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस. अगर यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे ये सभी लैंग्वेजेस है. ये PHP है, C++ है, SQL है, देन ML दैट इज नॉट लैंग्वेज बट SQL दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, C, R, then this is the Python. So this is the news which is published by IEEE. So if you want to actually get the news, you can search top programming languages by IEEE list, and you can go to the IEEE forum. You will see the top programming languages list over there itself. So I have just picked up the screenshot from there and I have just pasted it here for your information. So 2021 में Python ने टॉप किया है apart from other languages. So Python has secured at rank 1. Then Java. So Java and Python are always in competition. So we're always in competition. But right now Python is surpassing the Java language. And I think Python will surpass, and yes, so currently Java is also because Java is older, much more older language, and all of the university students or university syllabus if you see, then there is a Java language only. Python का syllabus अभी first year को आया है. So अभी first year को Python का syllabus आया है, तभी इतनी popular है. तो सोचो कि ये अगर ये syllabus complete होने के बाद ये कितना popular होगा. It has very much huge amount of applications and advantages in ML, that is machine learning, then data science and other domains as well. Apart from that, there are other languages as well, but I have not shown all of the languages because we are just concerned about Python here. I'm not saying that Java is bad language. All languages are good, but it is your decision. So most demanded language आपको pick करना है so that you should get job as early as possible. और ऐसा नहीं है कि if you learn Python तो Java नहीं learn कर सकते. Yes, you can learn Java as well. But if you are thinking right now, I don't know any programming language, but I want to learn some of the programming language or one of the programming language, then I am suggesting you that you should pick Python language over other languages. Let me tell you, any language will take at least 6 months of time. If you are doing continuous practice and if you are learning it on daily basis or continuously, then at least 6 months of time you will require to get the concept of the programming language. After 6 months, then if you are continuing or being in touch of the language, then after 6 or after 1 year you will feel comfortable with that language. ऐसा नहीं है कि 2 months का कोर्स किया, 3 months का कोर्स किया, मुझे पाइथन आ गया, मुझे जावा आ गया. दिस इज नॉट द थिंग. आप कोर्स करो, आप लर्न करो. लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन आर बोथ डिफरेंट पार्ट्स. तो आपको वो इम्प्लीमेंट अगर नहीं करना आ रहा है, दैट मीन्स यू डोंट नो द actual implementation or you don't have the practical knowledge of the language. So these are some of the key features of Python which are provided by IEEE forum. Then I have searched for language popularity trend.
सो पाइथन का लैंग्वेज पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। पहले क्या होता था, जावा थी ना, तो सभी लोग बोलते थे कि प्रोग्रामिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज जावा प्रोग्रामिंग है, जावा लर्न करना है आपको, राइट। तो पाइथन में ये डिफिकल्ट वर्ड है ना, वो हटा दिया है बिकॉज पाइथन इज वेरी मच सिंपलर और कोई भी लर्न कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंजीनियर्स ही पाइथन लर्न कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट, और अगर ग्रेजुएट नहीं है फिर भी वो लर्न कर सकता है पाइथन। अभी आई थिंक सीबीएसई वालों ने 7th स्टैंडर्ड को या आई डोंट नो, बट पाइथन वो सिलेबस में डाल रहे हैं उनके भी। सो देख लो अभी, दिस इज योर डिसीजन, सो कौन सी लैंग्वेज लर्न करना है। सो दिस इज जस्ट अ गाइडेंस from my side because I have gained good amount of experience on the Python language over my past experience. It's always your decision which language to pick. So let's go towards next slide. Okay, Python applications. So there are a lot of applications of Python in different of domains. So ये web development के लिए भी use होता है, that is for developing the websites and all. Then software development, again the database accesses and all, so we can connect the database with the Python. There are multiple packages supporting Python, that's why we can use it, we can plug it and play it with different domains, और बहुत easily हम plug and play कर सकते हैं because its syntax is very much simple. ओके, सो यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, एजुकेशन में भी है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग है, 3D ग्राफिक्स में है। सो ये जो नए डोमेन्स है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस डोमेन्स में तो अगर आपको जाना है या आपको इंटरेस्ट है कि भाई मुझे डेटा साइंस सीखना है, आई वांट टू बिकम मशीन लर्निंग इंजीनियर, आई वांट टू बिकम एन एआई एक्सपर्ट, तो आपको पाइथन आना ही चाहिए। यहाँ पे जावा सीख कर मैं डेटा साइंस करूंगा, ये अभी पॉसिबल तो नहीं है बिकॉज पाइथन ने यहाँ पे सभी लाइब्रेरीज इनबिल्ट प्रेजेंट कर दिए हैं, और पाइथन हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन डेटा साइंस एरिया। और आपको बताइए डेटा साइंटिस्ट और डेटा ये जो पोस्ट है उनको कितनी डिमांड है बाहर, राइट। सो Python, you should pick Python, learn data science or learn development or learn any kind of things. You can learn any kind of domain, you can get any kind of domain knowledge and implement the Python programming language in that domain. So ये जो पैकेजेस है, TensorFlow, ये मशीन लर्निंग का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पैकेजेस है, ये scikit-learn is also a package of machine learning. So ये क्या होता है कि Python में ऑलरेडी इनबिल्ट पैकेजेस या थर्ड पार्टी पैकेजेस बिल्ट है। सो ये ईच एंड एवरी कम्युनिटी क्या होता है, ओपन सोर्स कम्युनिटी है पाइथन की, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग टू द पाइथन। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर अपडेटिंग द पैकेजेस ऑन रेगुलर बेसिस। सो क्या होता है कि इवोल्यूशन होता है पाइथन का। तो ये जो पैकेजेस है ये डायरेक्टली मशीन लर्निंग करना है इम्प्लीमेंट, तो ये पैकेज इंपोर्ट करो। Seaborn and Matplotlib libraries are for data visualization. It means we need to generate insights from the data. हमें डैशबोर्ड्स बनाने पड़ते हैं, राइट। आपने सुना होगा पावर बीआई वगैरह स्किल है, पावर बीआई एक्सपर्ट वगैरह लग रहा है। पावर बीआई इज आल्सो अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल, राइट। सिमिलरली पाइथन में इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, पाइथन के लिए डेटा विजुअलाइजेशन भी पाइथन में ही कर सकते हैं, डोंट वरी। पाइथन सीखने के बाद ये सब कुछ पाइथन में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। Pandas is for data manipulation. TensorFlow is library another that is used for artificial intelligence. Okay, so this is regarding the data science and ML and AI domains. So application development में तो बहुत सारे application है Python के, तो हम GUI based applications, desktop based applications बना सकते हैं। That means notepad जैसा application है या calculator application है हमारे Windows में, so those are GUI desktop applications. So we can also develop such kind of applications using Python, right? It is used in image processing, scientific and numeric calculations में Python का बहुत सारे packages है Python के inbuilt. Then सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी में भी यूज कर सकते हैं। 3D है, जो 3D एनिमेशंस या एप्लीकेशंस करना है वो भी हम पाइथन में डेवलप कर सकते हैं।
देन ऑडियो वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज एप्लीकेशन देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन, बट due to the time constraint we are not covering all the applications here. The demo sessions purpose is to convey you that how much important the Python is, right? Python language is. That is the main purpose of this demo. So let's move towards other slide. So what after Python, right? So ये सब कुछ तो देख लिया, ये एप्लीकेशन इतना है, ये है वो है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि ठीक है मैंने पाइथन सीख लिया, आगे क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर, और मैं कैसे जॉब ले सकता हूँ आफ्टर लर्निंग पाइथन. तो लेट मी फर्स्ट टेल यू, आफ्टर लर्निंग पाइथन डायरेक्टली आपको पाइथन डेवलपर जॉब नहीं मिलने वाला, बट यू कैन गेट जॉब एज अ जूनियर इंजीनियर और जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जूनियर डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, राइट? अगर आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो तो प्राइमरीली आपको डेटा एनालिस्ट पोस्ट का जॉब ये करना पड़ेगा, वेयर यू नीड टू प्ले विद द डेटा, मैनिपुलेट द डेटा यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज लाइक पांडास एंड ऑल, राइट? तो आपको एंट्री करना इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ पाइथन, और पाइथन को एप्लीकेशन में वहां पे इंप्लीमेंट करना है. दैट मीन्स यू नीड टू यूज पाइथन इन योर प्रोजेक्ट्स. सो वहां पे जब आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आएगा तब आप आफ्टर टेकिंग 2 years or minimum 1 year of experience you can switch the job, or you can promote your job as a Python developer, then or data engineer you can say, or Python developer, then data scientist. So the data scientist is the post which is most senior one. आपको डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट बोल के अगर कोई कंपनी लेती है तो एज अ फ्रेशर, सो आप ये मत हो जाना, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट पोस्ट के लिए बहुत सारे डोमेन एक्सपर्टीज लगते हैं. सो अगर आपको मिलता है तो दैट इज गुड, अगर नहीं मिलता है तो आपको ये कैसे अचीव करना है, राइट? सो यू कैन अचीव दैट पोस्ट यूजिंग योर एक्सपीरियंस, राइट? सो पाइथन डेवलपर के लिए क्या क्या लगते हैं स्किल्स, ये है पूरा कि पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, एक वन ऑफ द फ्रेमवर्क आना चाहिए उसको, कि फ्लास्क Django is the framework for the web development and all. ऐसी बात नहीं है कि पाइथन का कोर्स किया तो आपको सब कुछ आ गया. दिस इज नॉट द थिंग. पाइथन इज जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आपको अदर डोमेन्स में या अदर टूल्स के साथ वो इम्प्लीमेंट करना है. सो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है कि मैंने एक पाइथन का कोर्स किया और मुझे सब कुछ आ गया. आपको कंटिन्यूअसली लर्न करना पड़ेगा, और ये बातें कोई भी बताता नहीं है. आपको डायरेक्टली बोलेंगे हाँ पाइथन सीख ले, यू विल गेट द जॉब. पाइथन को बहुत डिमांड है. यस, पाइथन को डिमांड है, लेकिन पाइथन कोर्स करने के बाद ना फिर भी जॉब नहीं मिलता है. सो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. आई डोंट मीन दैट एक्सपीरियंस इन द सेंस आपको सिर्फ कंपनी में जाके ही एक्सपीरियंस लेना है. आप खुद से भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं. यू कैन ट्राई प्रोजेक्ट्स ऑन योर ओन. अगर आपको जॉब नहीं मिलता है आफ्टर द कोर्स, यू शुड टेक 2-3 प्रोजेक्ट्स ऑन योर ओन, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, राइट? मेक योर रिज्यूमे स्ट्रॉन्गर, राइट? देन आफ्टर दैट यू कैन गेट द जॉब. सो पाइथन डेवलपर के लिए आपको क्या नॉलेज होना चाहिए? तो पाइथन डेवलपर के लिए पाइथन तो आना चाहिए, बिकॉज दिस इज द पाइथन डेवलपर. अगर जावा आता है तो पाइथन डेवलपर नहीं बन सकते. इट इज द मेन बेसिक थिंग. ओके, यू हैव टू नो वन ऑफ द फ्रेमवर्क, दैट इज फ्लास्क एंड Django. देन फ्रंट एंड नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट डेवलप करना है तो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड का भी नॉलेज रहना चाहिए. डेटाबेस है, डेटाबेस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं, और डिजिटल वर्ल्ड में डेटा का नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वी आर वर्किंग ऑन विंडोज, बट अगर लिनक्स का नॉलेज है तो अच्छा है, क्योंकि लिनक्स में बहुत सारे सर्वर वगैरह सेटअप होते हैं. जो भी एप्लीकेशन डेवलप या डिप्लॉयमेंट होता है वो मोस्ट ऑफ द लिनक्स सर्वर पे होता है. देन क्लाउड का भी नॉलेज रहना अच्छा है, लेकिन आपको प्राइमरी थिंग क्या आना चाहिए? पाइथन आना चाहिए, तभी आप पाइथन डेवलपर बन सकते हो. So that's it. So second post is data engineer. Data engineer and data scientist are new posts, most demanding posts in the IT industry. So इसमें क्या है कि डेटा इंजीनियरिंग के लिए पाइथन तो आना है, तो डेटा इंजीनियर पोस्ट है, इसलिए डेटाबेस का भी नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज ही शुड बी गुड इन प्लेइंग विद द डेटा. सो बिग डेटा कंसेप्ट है,
क्लाउड नॉलेज है, AWS क्लाउड पे हम डेटा स्टोर करते हैं, इसलिए क्लाउड का भी नॉलेज होना चाहिए। लेकिन प्राइमरी थिंग इज दैट पाइथन का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज पाइथन यूज करके हम डेटा मैनिपुलेशन इजीली कर सकते हैं, राइट। डेटा साइंटिस्ट इज बहुत सीनियर लेवल की पोस्ट है ये। अगर किसी को मिलती है अच्छा है, और अगर इनिशियली डेटा साइंटिस्ट मिलता है पोस्ट तो उसको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट दैट मच इजी। बट डेटा साइंटिस्ट में फर्स्ट लैंग्वेज है जो पाइथन में एक्सपर्ट होना चाहिए आपको। उसके बाद ये वेब फ्रेमवर्क सब कुछ नॉलेज होना चाहिए डेटा साइंटिस्ट को, सभी लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए उसके अंदर, स्टोरी टेलिंग क्या स्किल्स होना चाहिए, राइट। ही शुड मैनेज द टीम, ही शुड बी अ लीडर। मशीन लर्निंग का नॉलेज होना चाहिए उसके पास, डेटा विजुअलाइजेशन होना चाहिए, राइट। डेटा विजुअलाइजेशन मींस डेटा रीड करके उसको इनसाइट्स में कन्वर्ट करना। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स that data scientist must know, right? Then वेब फ्रेमवर्क, वो डेटा एनालिटिक्स और फोरकास्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, राइट। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो डोमेन्स है, और डोमेन एक्सपर्टीज भी होना चाहिए। उसका स्टैटिस्टिक्स अच्छा होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, तो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। सो स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्टीज होने चाहिए। स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग में जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है वो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे होता है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर डेटा साइंटिस्ट। आपने पाइथन लैंग्वेज सीख लिया, उसके बाद बोलेगे कि नहीं मुझे पाइथन पे जॉब चाहिए, लेकिन या यू कैन यूज दैट योर लर्निंग एक्सपीरियंस टू गेट द जॉब फर्स्ट। यू नीड टू गेट द जॉब फर्स्ट, देन इम्प्लीमेंट द योर नॉलेज ऑफ पाइथन ओवर देयर using any projects or in the project, right? Fourth post is DevOps engineer. DevOps engineering is also a new domain. ये आईटी में बहुत नए डोमेन्स है। ये पाइथन डेवलपमेंट या डेवलपर ये पोस्ट आपको पता होगी, लेकिन ये जो 3 पोस्ट है ना, ये बहुत नए पोस्ट है। एक बात ध्यान में रखो, कोई भी लैंग्वेज सीख लो, ये 2-4 मंथ्स की या 1 ईयर की बात नहीं है, आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करना पड़ेगा, राइट। ये पाइथन हो या जावा लैंग्वेज हो या अदर लैंग्वेजेस, बिकॉज ये इतना सिंपल नहीं होता है। जैसे कि एक 4 मंथ्स में हमने एक कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद क्या किया, जॉब सर्च में थोड़ा बहुत लगे, और उसके बाद हमने क्या किया, वो जो टच होता है ना प्रैक्टिस का, वो टच हमने लूज किया। तो क्या होता है, उसके बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत दूर की चीज, आपको कंसेप्ट ही ध्यान में नहीं रहेंगे। आपको जो टच है वो पाइथन के साथ ऑलवेज रखना है। यू नीड टू बी इन टच विद द प्रोग्रामिंग। ये पहले ही डिसाइड करो, आपको सीरियसली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या आईटी कंपनी में जॉब करना है तो सबसे अच्छा और कंफर्टेबल जॉब रहता है डेवलपर्स का, या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, उनका अच्छा और कंफर्टेबल जॉब रहता है, प्रोवाइडेड यू हैव टू गेन द नॉलेज, राइट। मुझे पाइथन डेवलपर या डेटा साइंटिस्ट होना है, लेकिन मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो मैं कैसे बन सकता हूँ, राइट। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। ये आपको सोचकर ये करना है, डिसीजन लेना है। अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में जाना है तो दीज आर द जॉब्स फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। बहुत सारी रिक्वायरमेंट है आईटी में इस जॉब पोस्ट की, बिकॉज ये स्किल सेट ही नहीं है। पाइथन आता है क्या किसी को? नहीं, अभी तो यूनिवर्सिटी में आया है ये, और पुणे में इतने सारी कंपनीज है, they are demanding we need Python developer at least 2 years of experience, right? या who is having good knowledge। नहीं मिलते ये सब कुछ कोर्सेस करके एकदम बढ़िया 2-3 महीने बढ़िया टाइम पास करते। सो ड्यूरिंग द कोर्स यू नीड टू स्टडी इट ऑन योर ओन, राइट। ऐसा नहीं है कि कोर्स किया और कोर्स वाला ही सब कुछ समझाएगा। आपको खुद से भी प्रैक्टिस करते रहना है और इम्प्लीमेंटेशंस करते रहना है। देन यू कैन गेट दीज पोस्ट आफ्टर एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और ये जब पोस्ट आपको मिलेंगे, यू विल ऑटोमेटिकली लर्न, यू विल ऑटोमेटिकली ग्रो, बिकॉज इसमें इतने सारे टेक्नोलॉजी स्किल्स है या मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स है मार्केट में। और ये जो स्किल सेट मैंने यहाँ पे दिया है ना,
ये बहुत डिमांडिंग स्किल सेट्स है। तो ये आपको कॉलेज लेवल पे सिखाए नहीं जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो ये आप भूल जाओ कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ या ये आईटी इंजीनियर, मेरी ब्रांच आईटी है, मैं क्यों कोर्स करूँ वगैरह वगैरह। ये यूनिवर्सिटी को नहीं है। ये अभी यूनिवर्सिटी को पाइथन बेसिक आया है, फर्स्ट ईयर को सब्जेक्ट आया है। सो इफ यू आर थिंकिंग दैट आई एम आईटी इंजीनियर और आई एम कंप्यूटर इंजीनियर ऑन or any other field from other field, if you have done commerce and you are thinking that I want to enter into IT, then learning Python is the best way, क्योंकि ये डायरेक्टली इंप्रेशन आपका रहेगा कि भाई ये जो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट को पाइथन आता है, बिकॉज पाइथन के लिए डिमांड है अभी। सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में आप सब्जी खरीदने जाओगे तो आपको कौन सी सब्जी बहुत एक्सपेंसिव रेट में मिलेगी? जो भी सब्जी एक्सपेंसिव रेट में मिलेगी उसकी जो डिमांड है बहुत ज्यादा होगी या वहां पे अवेलेबल ही नहीं है वो, राइट? वो मार्केट वाला क्या करेगा, वो ज्यादा एक्सपेंसिव रेट को वो बेच देगा सब्जी। वो कोई भी हो, कोरिएंडर लीव्स भी हो तो वो भी एक्सपेंसिव रेट में चले जाएंगे। अगर समझो पैज है, पैज मार्केट में सभी जगह पैज अवेलेबल है, तो उसके इसकी जो वैल्यू है वो कम होगी या ज्यादा होगी? जो परचेसिंग वैल्यू है ऑफ कोर्स कम होगी, वो सब जगह मिल रहा है ना। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी वही है। आपके पास कौन से लेटेस्ट स्किल्स है, मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स है, उनको वैल्यू मिलेगी मिलेगी। अगर आप जावा प्रिफर करने वाले हो तो मार्केट में जाके देखो कि कितने जावा डेवलपर्स या जावा इंजीनियर्स घूम रहे हैं, और कंपेयर करो पाइथन इंजीनियर्स या पाइथन डेवलपर के साथ। तो जो मोस्टली आपको मिलेंगे वो जावा डेवलपर्स ही मिलेंगे, बिकॉज जावा इज ओल्ड लैंग्वेज, सभी जन जावा करते हैं, और कॉलेज में भी जावा ही सिखाया जाता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर आल्सो टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन जावा। द डिमांड ऑफ पाइथन इज मोर, राइट? ओके, सो डेवऑप्स इंजीनियर का जो ये पोस्ट है ये एक्सप्लेन करना बाकी था। डेवऑप्स इंजीनियर इज व्हाट? सो व्हाट इज द डेवऑप्स फील्ड, राइट? सो डेवऑप्स फील्ड इज डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस, राइट? सो डेवऑप्स फील्ड में डेवलपमेंट और ऑपरेशंस दोनों चीजें होती है। तो डेवऑप्स के लिए भी पाइथन आगे है, पाइथन आना ही चाहिए। उसके साथ ये नए टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी है जो कि यूनिवर्सिटीज को भी पता नहीं है कि क्या है ये। तो आपको अच्छा जॉब ये ग्रैब करना है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो ये स्किल्स आपको आने ही पड़ेंगे। आपकी कॉलेज की डिग्री कोई नहीं देखता है। तो दैट्स व्हाई I suggest you should start learning these skills as soon as possible, so that you should get the job as soon as possible. Okay, so ये जो Python लैंग्वेज DevOps इंजीनियर के लिए Python भी लगेगा, Ansible, ये वो बहुत सारे ये एडवांस स्किल्स है। सो मेरा यहाँ पे एक ही पर्पस था आपको बताने का कि ये जो नए जॉब पोस्ट है उसमें Python स्किल मैंडेटरी है, Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंडेटरी है। सो आप पाइथन सीखने के बाद ये पोस्ट ज्वाइन कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको बाकी का भी थोड़ा बहुत नॉलेज आना चाहिए। और अगर आपको बाकी ये जो पोस्ट है ये थोड़ा सा सीनियर लेवल की पोस्ट है, मैं जूनियर लेवल की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। जूनियर लेवल को डायरेक्ट पाइथन डेवलपर नहीं मिलता है, लेकिन you can get as a junior developer, you can get job as a junior developer on the basis of Python or data analyst or process executive kind of things. So वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो टू एंटर दीज फील्ड्स, बिकॉज पैसे के पीछे मत भागो, एक्सपर्टीज हासिल कर लो और इंटरेस्ट किस में है ये देखो। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज गेटिंग द जॉब इन IT is very easy, but surviving that IT job is very much difficult. तो IT में अगर अच्छी तरह से कंफर्टेबली रहना है तो आपको लर्न करना ही पड़ता है। तो अभी दिस इज द टाइम, राइट टाइम फॉर यू, यू शुड स्टार्ट लर्निंग दिस स्किल्स। आप अभी स्टार्ट करोगे तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको अच्छी तरह से वो कंसेप्ट
कंसेप्चुअली क्लियर होगा, यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन योर कॉलेज प्रोजेक्ट्स। और आप ग्रेजुएट हो तो आप आज स्टार्ट करोगे तो बाद में फ्यूचर में आप सेल्फ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, यू कैन बिल्ड योर ओन रिज्यूमे स्ट्रॉन्गर एंड देन यू कैन गेट द जॉब। मुझे पता नहीं है कि बहुत सारे लोग ना जॉब के पीछे भागते। क्यों भाग रहे हो जॉब जॉब के पीछे? तुम खुद को इम्प्रूव कर दो यार, जॉब तुम्हारे पीछे आएगा। यहाँ पे आईटी में इतने ये है डिमांड है इस जो भी पोस्ट यहाँ पे देख रहे हो इनकी, लेकिन स्किलफुल पर्सन ही नहीं मिल रहे। और यहाँ पे बंदे क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं और मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मुझे जॉब नहीं मिल रहा है ऐसे बैठते। डे बाय डे तुम स्टडी करो, इम्प्रूव योर सेल्फ, राइट? देन देखो, यू शुड बिल्ड योर रिज्यूमे एंड ट्राई इट। देखो अगर कंपनी आपको कॉल नहीं करेगी या आपको ऑफर लेटर नहीं देगी तो बोलो फिर बाद में। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है, ये आपको कोई बताएगा नहीं। So these are some of the posts. I'm not going to explain all the other posts of Python. There are a hell lot of posts in Python. You can become business developer या business analyst kind of thing as well. So there are lot of posts. You can Google में directly रखो, सर्च करो कि मैंने Python लर्न करने के बाद मैं कौन से पोस्ट में आईटी में काम कर सकता हूँ, आपको दिख जाएंगे। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट डिमांडेड पोस्ट है जो कि बहुत अच्छी सैलरी पे करते हैं मार्केट में, जो कि आई वांटेड टू शो यू और टेल यू। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म। सो ये जो टेक्नोडेक्स्टरस, व्हाट इज टेक्नोडेक्स्टरस, राइट? सो टेक्नोडेक्स्टरस इज अ टेक्नोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म. So we are present in our social media sites as well. We are present at Facebook, we are present at Instagram channel, we are also present at YouTube. And this platform is also providing the course, a complete Python course from scratch. From scratch in the sense आपको Python language कुछ भी पता नहीं है, फिर भी आप ये कोर्स इनरोल कर सकते हो। ये कोर्स में टॉपिक्स क्या क्या कवर होगा या जो भी फैसिलिटीज है इस कोर्स के, ये एज पर बिलो है। टॉपिक्स कवर्ड क्या क्या है, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस पाइथन, पूरा फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस पाइथन सिखाया जाएगा। दिस इज द वीकेंड कोर्स। वीकेंड इन द सेंस ये सिर्फ सैटरडे और संडे रखा गया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस, राइट, रेगुलर स्टूडेंट्स। सो सैटरडे और संडे उनका ऑफ रहता है। सम ऑफ you people have already registered, okay? So ये वीकेंड में ही होता है, सैटरडे संडे 2 आवर्स के लिए। सो इसमें क्या है कि इसमें अपार्ट फ्रॉम पाइथन लैंग्वेज व्हाट यू आर गेटिंग, राइट, यू आर गेटिंग रेज्यूमे प्रिपरेशन। सो आई विल also guide you how to prepare your resume, right, how to make your resume powerful after learning the Python language. Then technical interview preparation, जो भी इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको कैसे आंसर करना है या कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये पूरा का पूरा गाइडेंस यहाँ पे कवर होगा, इस कोर्स में कवर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बेनिफिट्स क्या है इस कोर्स के, कि भाई सर्टिफिकेट मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। देन डिजिटल नोट्स है। व्हाट इज डिजिटल नोट्स? सो डिजिटल नोट्स इज द, वी डोंट नीड टू सिट हियर एंड विद द पेन एंड पेपर, राइट, यू डोंट नीड टू मेक नोट्स। कभी कभार क्या होता है कि भाई मेरा नोटबुक गुम हो गया और मैं अभी कैसे पढ़ाई करूं पाइथन की, राइट? तो डिजिटल नोट्स इज द फीचर ऑफ टेक्नोडेक्स्टरस। आपको वेबसाइट पे लॉगिन दिया जाएगा और आपके सभी नोट्स वहां पे होंगे, डिजिटल नोट्स, राइट? सो वो जो भी कंटेंट है आई विल शो यू, जो कंटेंट वहां पे है, पाइथन का कैसे कंटेंट अपडेटेड है वगैरह। उसके बाद रिज्यूमे प्रिपरेशन है, कंटिन्यूस सपोर्ट है, हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप है, वी आर प्रेजेंट ऑन YouTube, Instagram, Facebook. Yes. So this is just a short information about the course. You can learn Python from anywhere. You can learn from your college. अभी तो कॉलेज में आया है, तो कॉलेज में उतना ज्यादा सिलेबस नहीं है इसका, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह जो अगर लर्न करना है तो आई सजेस्ट यू शुड ज्वाइन दिस कोर्स, द कोर्स। देन लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। कोर्स बेनिफिट्स हमने अभी
डिस्कस किया है, आईटी करियर गाइडेंस है, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट प्रोवाइड करके उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, सो दैट यू शुड गेट जॉब एज सुन एज पॉसिबल। डिजिटल नोट्स है, रिज्यूमे प्रिपरेशन और डिजिटल प्रोफाइल बिल्डिंग भी हम करते हैं। कंटिन्यूअस सपोर्ट है, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है या इंस्टाग्राम पे ग्रुप है, वहाँ पे आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ यू कैन रजिस्टर टू आवर फॉर दिस कोर्स, राइट? If you have interest and you want to join us, yes you can. So कैसे register करना है? So this is our website www.techno-dexterous.com. Let's go to the Google Chrome and directly type. So this is the site website. So I think I have provided this website name in our course material or course details. So on this page you will find all the rest of the courses, but अभी हमने सिर्फ पाइथन के कंटेंट की अपडेट किए हैं इस कोर्स में या इस प्लेटफॉर्म पे। सो यू विल गेट एवरीथिंग रिगार्डिंग पाइथन। तो यहाँ पे आप बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, ये 3 सेक्शंस आपके कवर होने वाले हैं। तो अभी बेसिक्स, यहाँ पे बेसिक्स में आप देख सकते हो दीज आर योर डिजिटल नोट्स। इसमें क्या है कि पूरे वीडियो सेशंस और नोट्स यहाँ पे मेंटेन्ड है। तो इफ यू गो एंड जस्ट click on the variables, Python variables, then you will get all the notes here itself with the examples. Then you will go get the notes, quick notes for your revision, and yes, there is a video as well, so you can refer this video to clear the concept and revise the things. So आपको यहाँ पे पेन एंड पेपर लेके बैठना नहीं है, यहाँ पे कंप्लीटली प्रैक्टिकल सेशंस होंगे। आपको लैपटॉप लेके बैठना है, राइट? यू हैव टू डू कोडिंग विथ मी। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर वेबसाइट। सो अभी रजिस्टर कैसे करना है, इफ एनीवन इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे रजिस्टर कैसे करना है, वेयर इज द ऑप्शन। सो फर्स्ट इज दिस, नोट डाउन दिस वेबसाइट, दैट इज www.techno-dexterous.com। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन के बाद यहाँ पे रजिस्टर हियर लिंक है, उस पर क्लिक करना है और यस, सो ये फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन वी विल गेट बैक टू यू। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस।